ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 9 ਚੈਪਟਰ 4th 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.3। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ 8th। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਫ ਮੀਨਸ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੇਜਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ C ਫੋਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 5 ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ x ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ y ਧੁਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਲੇਖ ਖਿੱਚੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ f = 9। ਇਹ ਜੋ c ਪਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ 9c ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ 5 + 12। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 9c ਪਲੱਸ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 × 5 ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5। ਕਲੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ f = 9c ਪਲੱਸ 12 5 × 60। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ yx 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ y ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। f = ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9c + 60/5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ f ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਤੇ y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ c = 10। ਸੋ ਜਦੋਂ c = 10 ਹੈ ਤਾਂ f ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, f = 9, c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਪਲੱਸ 60 ਆ ਗਿਆ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 5। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, f = 9 10s are 90 plus 60/5। ਸੋ f ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 960 90 ਦੇ 60 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 5 1s are 5 5 3s are 15 ਅਤੇ 0 5 × 5 5 ਦੀ 15 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ c ਅਤੇ f। c ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ 10 ਅਤੇ f ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ f ਲਿਆ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ c ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। c ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 30, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ f ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ f = ਹੋਏਗਾ 9 c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 30 ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5। ਸੋ f = 30 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 270 270 900 9 3s are 27 ਪਲੱਸ 60 ਓਵਰ 5। ਸੋ 270 ਪਲੱਸ 60 ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0 3 7 6 13 1 ਹਾਸਲ ਕੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 1 1 3 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ f = 330/5। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ 5 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5 6 ਦਾ 30 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ 3 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 0 ਲਿਖੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5 6 ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 66। ਸੋ f = ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 66। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c ਜਿਹੜਾ 30 ਹੈ ਤਾਂ f ਕਿੰਨਾ ਹੈ 66। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਲੇਖ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ x ਅਤੇ ਇੱਕ y ਧੁਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਡੈਸ਼,
ये साडे को एक्स, ये साडे को नीचे आ गया वाई डैश। सो इस साइड ते नैगेटिव पॉइंट्स होंगे साडे को, ये साडा पॉइंट ऑफ रीजन जां रैफरेंस पॉइंट जां आरंभिक बिंदु हुंदा है। सो सी कितना है साडे को 10 है, वध तो वध 30 है। सो एफ साडे को वध तो वध कितना है 66। सो इसका मतलब असीं पॉइंट जिहड़े ने वो 60 तो थोड़ा उपर तक रख के चलना है। साडे को की आंदा है 10 20 30 40 50 60 ਅਤੇ 70। सो उपर भी साडे को इस तरह ही 10 20 30 40 50 60 थोड़ा जिहा उपर पुर ले जाते हैं, साडे को आ गया इधर 70 वाई। सो इस तरह साडे को जिहड़ा एक ग्राफ है वो बन के तैयार हो जाता है। सो ध्यान दिओ कि तुसीं तो ग्राफ पेपर ते बनाना है तो तुहाडे कोल उसके उपर एक छोटे छोटे जिहड़े कि स्केयर बने होणगे ते एक थोड़े वड्डे होणगे। सब तो पहला तुसीं ग्राफ नूं सेंटर विचों डिवाइड कर लेना है, फिर तुसीं एक जिहड़ा वड्डा बॉक्स होएगा तुसीं उसनूं 10 इकाइयां मनना है, फिर दूसरे ते 20 लिखांगे, फिर 30 लिखांगे, तो इस तरह असीं ग्राफ जिहड़ा वो बना लेना है। सो जेकर तुसीं इस तरह प्लेन पेज ते बना रहे हो तो ध्यान रखो कि ये जिहड़े गैप ने साडे कोल सारे ही साडे कोल आपस विच बराबर जिहड़े होने चाहिए हैं। हुण फिर साडे कोल जदों सी 10 है तो एफ कितना है 30 है। सो सी दूसरी गल हुण सी एफ किहड़ा होगा, ए सी होगा जां ए सी होगा जां ए एफ होगा जां ए एफ होवेगा। सो ये सानूं दस्सिया गया है कि सैल्सीयस नूं एक्स धुरे ते लिखना है। सो इत्थे साडे कोल आंदा है सैल्सीयस, ठीक है। सो इस साइड ते साडे कोल की आ जाएगा फारनहीट। सो साडे को की आया सी 10 वाई एफ 30, सी है 10 साडे को, एफ कितना है 30। सो देखो एफ कितने पे है उपर, फारनहीट इधर सैल्सीयस। सो इत्थों असीं उपर गए, सो इस साइड तो एक पॉइंट आया साडे को, ए पॉइंट साडे को इस तरह कैंसल होए इस पॉइंट ते। सो ये मतलब कि साडे को पहला पॉइंट आ गया जिथे साडे को सी कितना है 10 और एफ कितना है 30। फिर साडे को सी 30 और एफ 66। सो एफ 66 है साडे को, फारनहीट इस साइड ते है। सो ये देखो 50 60 ते इहदे सेंटर 'च आ गया 65 ते इस ते एक उपर असीं लैंदे हां 66। सो ध्यान दिओ कि 10 तो 20 तक जाइए तो साडे को 10 पॉइंट होणगे, इस तरह 10 60 तो 70 तक जाइए तो विचकार साडे को 69 तक पॉइंट्स जिहड़े होणगे अते असीं अपना जिहड़ा 66 पॉइंट है 66 नंबर पॉइंट है वो लै लिया है। सो ध्यान दिओ एफ सी कितना है साडे को 30, ये है साडे को सी दिता गया 30। इत्थों असीं उपर वाल चलदे हां, ये देखो थोड़ा जिहा तुसीं जदों स्केल नाल जाओगे तो तुहाडे कोल लाइन जिहड़ी बिल्कुल सही बनेगी। सो 66 तो इस साइड ते आए, ये पॉइंट साडे को कैंसल हुंदा है तो साडे को एक पॉइंट आ गया जिथे साडे कोल सी कितना है 30 है और एफ कितना है 66 है। हुण दो पॉइंट्स आ गए हैं साडे को। हुण जदों लेख खिंचना हुंदा है तो सानूं पता असीं इन्हां दोवां पॉइंट्स नूं आपस विच ज्वाइन कर दांगे, आपस विच मिला दांगे। सो ये असीं दोवां नूं आपस विच मिलाता तो इस तरह साडे को एक ग्राफ जिहड़ा है वो बन के तैयार हुंदा है जां इसदा लेख जिहड़ा वो खिंचिया जांदा है। सो इक्वेशन की सी साडे को एफ इज इक्वल टू 9c प्लस 60/5। सो ये साडा 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिस दे विच सानूं एक आलेख खिंचण नूं कहा गया सी। सो उम्मीद है कि तुहानूं जिहड़ा फर्स्ट पार्ट है क्लीयर हो गया होवेगा। सो सैकेंड पार्ट है साडा जे तापमान 30 डिग्री सैल्सीयस है तो फारनहीट विच कितना तापमान होवेगा। सो सैकेंड देखते हैं साडे को की बनता है। जदों सी साडे को 30 है, ये साडा सैकेंड पार्ट है। सो सी 30 है तो असीं इत्थे 30 अपना कढ़िया भी सीगा, सॉल्व भी कीता सी, साडे को कितना आया सी 66 आया सी। सो सैकेंड पार्ट लई फिर देख लैंदे असीं सी इज इक्वल टू 30 तो एफ फाइंड करना है साडे को कितना आंदा 9, सी की जगह ते 30 प्लस 60 आ गया साडा, ओवर आ गया 30। सो ये साडे को आ गया एफ इज इक्वल टू 270 प्लस 60 ओवर आ गया साडे को 30। सो एफ इज इक्वल टू आ गया साडे कोल 330 अपॉन सॉरी नीचे है साडे को 5 ओवर आ गया 5। साडे को एफ कितना आ गया सी 66। सो दूसरे का पार्ट का साडे को आंसर की आंदा है 66। फिर साडे को थर्ड पॉइंट पार्ट है जिस विच कहा गया कि जेकर तापमान 95 डिग्री फारनहीट है। सो टैंपरेचर जिहड़ा साडे को जो तापमान है वो फारनहीट विच दे दिता गया है तो सानू सैल्सीयस पता करने कहा गया है। सो एफ कितना है साडे को 95 डिग्री। सो थर्ड पार्ट।
सो देखो एफ आ गया साडे को, हुण असीं सी प्राप्त करांगे। सो साडे कोल आएगा एफ की साइड पर आ गया 95 डिग्री इज इक्वल टू 9 सी इस तरह ही प्लस 60/5। हुण ये जो 5 है साडे को, इसनूं असीं मल्टीप्लाई करांगे अपने 95 नाल। सो मल्टीप्लाई करो, देखो 95 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी जा हासिल, 5 9 ज़ा 45, 5 9 45, 46 47, ये आ गया साडे को 475 475 डिग्री। 9C प्लस 60 ये भी साडे को डिग्री च है इस साइड पर। हुण असीं सी फाइंड करना है, 60 नूं असीं माइनस करते हैं, 475 माइनस 60 इज इक्वल टू 9C। सो माइनस किया 60 साडे को आ गया 514 415 इज इक्वल टू 9C। सो सी फाइंड करना है, साडे को आ गया 415/9। सो 9 डिवाइड हो जाएगा। सो डिवीजन देखते हैं, असीं इसनूं 9 नाल डिवाइड करते हैं। 9 चौका 36, 9 4 ज़ा 36, ये रह गया 3, इधर आ गया 11, 11 चो 6 माइनस करो 5, फिर साडे को 5 आ गया। सो साडे को आया 9 6 ज़ा 54, फिर 1 आ गया साडे को, 0 लगावांगे, 0 नीचे आएगा, इत्थे लग गया पॉइंट। सो जो भी 0 लगाना है असीं पॉइंट आ जाएगा साडे को आंसर दे विच। सो 9 1 ज़ा 9 आ गया साडे को, 1 फिर बच गया। सो आंसर साडे को आ गया जो सी दा डिवाइड करके आ जाएगा 46.111 सो ऑन चलेगा। सो इसनूं राउंड ऑफ करते हैं, साडे को लिख देंगे असीं 46.12 डिग्री, ये साडे को आंसर आ जाता है। सो थर्ड का आंसर आ गया साडे कोल 46.12 डिग्री सैल्सीਅस। सो इस तो बाद साडा पार्ट 4 आता है, जिस दे विच सानूं कहा गया है कि जेकर तापमान 0 डिग्री सैल्सीਅस है। सो पार्ट 4 टैंपरेचर कितना है साडे को 0 डिग्री सैल्सीਅस, तो फारनहीट विच कितना तापमान होवेगा, ਅਤੇ जे तापमान 0 डिग्री फारनहीट विच है तो सैल्सीਅस विच कितना तापमान होगा। मतलब कि दोवां नूं असीं 0 लेना है तो फिर असीं दूसरे की जिहड़ी वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सो सब तो पहला 0 डिग्री सैल्सीਅस एफ फाइंड करते हैं असीं। ये टैंपरेचर है साडे को, एफ कितना आता है 9 सी की जगह तो 0 प्लस 60/f। सो एफ आया साडे को 900 हो गया, मल्टीप्लाई करके साडे को आ गया 60/5। सो 60 नूं जदों 5 नाल डिवाइड किया तो साडे को आ गया 5 एकम 5 1 0 5 दूनी 10 12 आ गया साडे को। सो इसदा मतलब एफ आ गया साडे कोल 12। सो पहला आंसर आ गया साडे को एफ इज इक्वल टू 12। फिर असीं सी फाइंड करना है। हुण साडे को टैंपरेचर हो गया 0 डिग्री फारनहीट। हुण असीं एफ की वैल्यू 0 लैनी है। ये देखो साडे को एफ की जगह तो 0 आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 9C प्लस 60/5। सो 5 0 ना मल्टीप्लाई 0 हो गया साडे को 9C प्लस 60, ये साडे को आ गया 0 माइनस 60 इज इक्वल टू 9C। सो 0 माइनस 60 माइनस हो जाएगा साडे को, वैल्यू किहड़ी वड्डी है साडे को 60। सो आंसर का आएगा माइनस विच, माइनस से 60 आ गए, आ गया साडे को 9C। सो सी आएगा साडे को माइनस 60/9। सो 9 डिवाइड हो जाएगा। सो 60 ना डिवाइड किया साडे को 9। सो डिवाइड करते हैं, 9 6 ज़ा 54, 9 6 54, फिर 6 बचे माइनस करन ते, फिर एक 0 लगाई असी तो इत्थे आ गया साडे को पॉइंट। सो 0 9 6 फिर 54 साडे को, फिर 6 बचे। सो ये आंसर साडे को की आ गया सी इज इक्वल टू 6.66। सो साडे को इस तरह रिपीट जिहड़ा 6 हो रहा है। फिर साडे को आंदा है सीधा फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ एंड दी लास्ट पार्ट है साडे को इस क्वेश्चन का। सो देखते हैं कि फिफ्थ पार्ट भी साडे कोल की है। सो पार्ट नंबर 5 च दिता गया है कि अजिहा भी कोई तापमान है जो फारनहीट ਅਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ संख्यात्मक समान होवे, जे हाँ तो उसनू पता करो। सो हुण साडे को देखो असीं फाइंड करना है सी। सो सी हो जाएगा साडे को 60 डिवाइड बाय -4, 4 1 ज़ा 4 15 4 15 ज़ा 60। सो 15 चौके 60, मतलब कि जे असीं गल करी तो 60 नूं 4 नाल डिवाइड किया, 4 एकम 4 माइनस किया 2 0 4 5 20। सो साडे को कितना है 15। सो ये माइनस सी साडे को आ गया सी इज इक्वल टू -15। सो इसदा मतलब कि -15 जिहड़ा साडे कोई कॉमन टैंपरेचर है। सो फिफ्थ का आंसर आ गया सी इज इक्वल टू एफ होएगा साडे को किन्ने ते 15 डिग्री टैंपरेचर ते। सो ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 8th। सो एक गल का ध्यान रखना है, थोड़ी जी असी क्वेश्चन दे जिहड़ी
ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 32 ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, 5, 6, 5th 5 ਦੇ 5 ਭਾਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.3 ਹੈ ਉਸ ਦੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।